Good morning, students. This is lecture number 2 of chapter number 5, Magnetism and Matter. And today's topic is magnetic field. Students, you know that there is an analogy between electric field and magnetic field. So today's first topic is current loop as magnetic dipole and dipole moment, right? We are going to discuss here that current loop behaves like a magnet or magnetic dipole. Magnetic dipole and magnet is same. Since magnet always exists in dipole. If there is a south pole, there should be a north pole. And we have to calculate its dipole moment also, right? So this is a current loop, current flowing in the direction of arrow. You can see here that there is a direction of current. Clear? This is the direction of current. Now what will happen? The magnetic field will produce across it, and there will be two poles, north and south. If we see from right, our right, the direction of current is anti-clockwise. It means this is the north pole from the right hand side. And if we see from the left, the direction of current is clockwise. It means it is behaving like a south pole. Right? So it is a dipole. And if it is magnetic dipole, so there should be the dipole moment, magnetic dipole moment. The magnetic dipole moment of the current loop is I into A. I into A. N cap is the unit vector. The value of magnetic dipole moment is I into A. ठीक है ना? इसकी करंट को अगर हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, A is area, तो we will get the magnetic dipole moment, right? The unit of the magnetic dipole moment will be ampere meter square. Ampere for current and meter square for area, right? Now the direction of magnetic dipole moment will be in the direction of magnetic field. Clear? Now we can resemble it from the bar magnet. That current solenoid is also acting as a magnetic dipole or bar magnet. Bar magnet is also magnetic dipole, since bar magnet also have two poles, south pole and north. Now see this solenoid. There are large number of turns, current is flowing in this solenoid. Now you can see from right, the direction of current is anti-clockwise, so it is north pole. And if we see from the left, the direction of current is clockwise. It means this is a south pole. So every solenoid which is carrying current is a magnetic dipole moment. Carrying magnetic dipole moment, since it is a magnetic dipole. And if it is magnetic dipole, so it will behave like a bar magnet. ठीक है ना? आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यही तो हुआ जिसमें करंट फ्लो होने पे वो मैग्नेट बन जाए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ठीक है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी, तो ये क्या बन गया? एक मैग्नेट बन गया. इस मैग्नेट का साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल राइट में. Now magnetic lines are originating from north pole and terminating at south pole outside the magnet. Inside the magnet, the magnetic lines are going from south to north. So inside the magnet, magnetic lines pass from the south to north, but outside the magnet, magnetic lines flows from north to south pole. So this is like a bar magnet, right? Now what is bar magnet? This is a bar magnet. You can see. Now the poles are near to the surface. Surface के near है, end के near है, लेकिन यहाँ नहीं होता पोल. पोल होता है just
इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है ना। ये पहला पोल था, ये सेकंड पोल है, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। तो आप देख रहे हैं ये जो डॉट है ये इस एंड से थोड़ा सा अंदर बना है, तो यहाँ पे दो लेंथ आएंगे हमारे पास। वन इज मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ मींस डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, और एक होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ का मतलब जिसे आप स्केल से मेजर कर सकते हो। अब ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होती है वो आप बार मैग्नेट पे स्केल लगाएंगे तो उसकी लेंथ पता लग जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक लेंथ को फाइंड आउट आप स्केल से नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हमें कंपास की जरूरत पड़ती है। तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, जो पोल के बीच की डिस्टेंस। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसलिए साउथ हमेशा पहले बनाया जाता है और जो नॉर्थ बनाया जाता है वो राइट साइड में बनाया जाता है। जैसे हम वहां डाइपोल में करते थे ना, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव क्यू को पहले बनाते थे, पॉजिटिव क्यू को राइट हैंड साइड में बनाते थे किसी भी बार मैग्नेट में। उसी तरीके से जब भी आप मैग्नेट को बनाएंगे बार मैग्नेट को, तो साउथ पोल लेफ्ट में रखना है और नॉर्थ पोल राइट में रखना है। तो आपको इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। क्लियरली पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, और ज्योमेट्रिकल लेंथ का मतलब होता है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस की लेंथ, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। अगर मैं इस लाइन को जोड़ती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये इस तरीके से, ये लाइन कहीं भी जा सकती है लेकिन दोनों पोल को टच करते हुए जाएगी, इसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। दूसरा, मैग्नेटिक लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। द डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये भी हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। The ratio of magnetic length and geometrical length is nearly 0.84 is ratio, ठीक है ना। इसका मतलब मैग्नेटिक लेंथ छोटी होती है और ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ी होती है। आप समझ गए होंगे, मैग्नेटिक लेंथ को ज्योमेट्रिकल लेंथ से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, लगभग इतनी आएगी 0.8। तो हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं, अगर हम ज्योमेट्रिकल लेंथ को स्केल से मेजर कर लें, इस रेशियो की हेल्प से हम उसकी मैग्नेटिक लेंथ का पता कर सकते। गॉट इट? नाउ मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? तो वहां हम क्या कहते थे, इस सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ क्या कहेंगे, the pair of magnetic poles of equal and opposite strength, आप समझ गए, equal and opposite strength separated by a finite distance is called magnetic dipole। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्लियर है तो ये समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ पोल्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। अब डाइपोल मूवमेंट, वहां हम कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यहाँ हम कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या आता था, P इक्वल टू Q इंटू 2A आता था, Q इंटू 2A। Q का मतलब क्या होता था, स्ट्रेंथ ऑफ एनी चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। वहां हम डाइपोल लेंथ क्या लेते थे, 2A। नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q के बीच की डिस्टेंस 2A ली जाती है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब यहाँ इसका क्या मतलब होगा, देखिए यहाँ पे हम इसकी पोल स्ट्रेंथ लेते हैं, वहां हम क्या लेते थे, चार्ज का मैग्नीट्यूड, यहाँ लेंगे पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, और इनके जो मैग्नेटिक लेंथ है वो हमने 2L मानी हुई है, यानी इस साउथ पोल से नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस जो है ये वाली मैग्नेटिक लेंथ वो 2L ली हुई है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। गॉट इट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ
Dipole moment is the product of pole strength and separation 2L between the poles. That is magnetic dipole moment. तो इसका फॉर्मूला बन गया M यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। ठीक है, अब ये जो आई कैप है वो डायरेक्शन को बता रहा है और इसकी डायरेक्शन मैंने बताई दी, ये कहाँ से होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, क्या होनी चाहिए, अभी आपने देखा था ये होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने करंट लूप के लिए देखा था, तो जो करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी यूनिट, वही किसकी भी होगी, पार मैग्नेटिक। ठीक है, नाउ कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब वहां कूलम्स लॉ होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या होता था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ एनालॉजी देखिए, यहाँ पे चार्ज की जगह क्या होंगे, दो पोल होंगे। ठीक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, या फिर दोनों नॉर्थ पोल या दोनों साउथ पोल। अगर ये दोनों पोल नॉर्थ नॉर्थ है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर एक नॉर्थ है एक साउथ है तो अट्रैक्ट करेंगे, दोनों साउथ होंगे तब भी रिपेल करेंगे। ठीक है, इनकी पोल स्ट्रेंथ है एक की M1 एक की M2, तो दोनों के बीच का जो फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। यहाँ चार्ज की जगह क्या आ जाता है, पोल स्ट्रेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, वही चीज जैसे पहले था, लेकिन यहाँ चार्ज की जगह क्या आ गया, पोल स्ट्रेंथ। ठीक, डिस्टेंस हम इन दोनों के बीच की आर ले लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई इसके भी दो पोल हैं, इसके भी दो पोल हैं, तो फोर्स का पता कैसे लगेगा। कूलम ने क्या किया था, ये जो मैग्नेट लिए थे ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए थे, यानी इसका दूसरा पोल यहाँ कहीं बहुत दूर है, बड़ा मैग्नेट लिया, ये वाला मैग्नेट भी बहुत बड़ा लिया है इनफाइनाइट लेंथ, तो इसका जो दूसरा पोल होगा उसका इफेक्ट यहाँ आ ही नहीं पाएगा, इसका भी जो दूसरा पोल है उसका इफेक्ट इन दोनों के बीच में कहीं आ ही नहीं पाएगा, तो इफेक्ट सिर्फ किसका होगा, इसका और इसका। ठीक है ना, तो ये इनफाइनाइट लेंथ के मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर किए थे, तब इन दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करने में उनको हेल्प मिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके बीच की डिस्टेंस है r, हम केवल ये पोल और ये पोल कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे पोल कहाँ है उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। ठीक है, फिर क्या आएगा, ये है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम अगर कंबाइन करें तो ये क्या आ गया, F इक्वल टू K M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे वहां होता था F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, लेकिन ये है मैग्नेटिज्म, इस K का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मैग्नेटिज्म में इसका मतलब होता है म्यू नॉट बाई 4 ठीक है ना, इस K का मतलब होता है म्यू नॉट बाई 4 वहां क्या होता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इस म्यू नॉट का मतलब होता है परमेबिलिटी इन वैक्यूम, परमेबिलिटी इन वैक्यूम। इस K यानी म्यू नॉट बाई 4 की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 किसकी वैल्यू, म्यू नॉट बाई 4 तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 10 टू द पावर -7। यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट हो जाती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब इसके आप वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या करना पड़ता है, इसको डायरेक्शन देनी पड़ती है, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को ये यूनिट वेक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूनिट वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक, आज के लिए इतना ही।
Thank you very much.